सर हो गई स्टार्ट। हो गई सर हो गई स्टार्टिंग। Welcome to lecture number 14 in the series of Thermodynamics 1. In yesterday's lecture, I told you how to do a process, a two-step process under isothermal conditions. यानी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था आइसोथर्मल कंडीशंस में, मगर हर वक्त आपको आइसोथर्मल कंडीशंस नहीं मिलेंगी. Isothermal conditions are a very rare case when you're dealing with ideal gas or such processes. Majority of the processes are not under isothermal conditions. You have to do calculations over there. तो इसलिए ये जो दूसरा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल है ना, ये जो है ये है अज्यूम करना कि आपके पास आइसोथर्मल कंडीशंस नहीं है. अब आपका न्यूमेरिकल क्या है? आपका न्यूमेरिकल ये है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी and the enthalpy changes. That means the total internal energy change, the total enthalpy change, Q and W, all four values total that occur when air is changed from 277 Kelvin and 10 bar. Change from, इसका मतलब आपको आपकी initial conditions मालूम है. These are conditions 1. Condition 1 is 277 Kelvin and 10 bar, where the molar volume is 2.28 meter cube kilomole to a final state of 333 Kelvin and 1 atm. Assume for air that PV upon T is constant and CV is 21, CP is 29.3 kilojoule kilomole inverse Kelvin 1. सबसे पहले आपने वही स्ट्रैटेजी करनी है. आपने अपनी स्टार्टिंग कंडीशंस लिख लेनी है, एंड कंडीशंस लिख लेनी है. उससे पहले भी यू हैव टू चेक वेदर सीपी एंड सीवी का डिफरेंस 8 है, व्हाट द यूनिट्स आर, जस्ट टू हैव अ रैंडम चेक. एंड सेकेंडली टू सी दैट इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी बेसिस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, 1 kilomole. डू यू थिंक, हाँ, वी विल टेक 1 kilomole. रीजन इज आपने 2.28 मीटर क्यूब को ऐसा यूनिट में लाना है, तो आप 1 kilomole बेसिस ले लेंगे. ऑटोमेटिकली जब आप 1 kilomole को बेसिस ले लेंगे तो ये आपका 2.28 वैसे के वैसे बन जाएगा. एक बात ये. दूसरी बात ये कि आपको ये एक प्रोसेस दी गई है, आपको ये नहीं मालूम है कि ये प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पहले हो रहा है या कांस्टेंट वॉल्यूम पहले हो रहा है. यू डोंट नो दैट, मगर आपको ये जरूर मालूम है कि इस प्रोसेस के अंदर ये दोनों चीजें होंगी. How do you know that both these things would happen in this process? Because number one, you've been given with CV, number two, you've been given with CP. Giving both of them means that it is a two-way process. Two-way process lazmi hona zaruri hai. That is your first clue. The second clue why this is a two-way process is you need 4 things: delta U, delta H, Q and W. Delta U can only come from a constant volume process. Delta H can come from a constant pressure process. तो ये आपको एक सेकंड क्लू दे रहा है कि आपका जो सवाल है ये 2 में डिवाइड होगा. अब ये आपके ऊपर है कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पहले लो या कांस्टेंट प्रेशर पहले लो. अगर आप अपने क्वेश्चन को 2 में डिवाइड कर लेते हो, लेट्स से यू आर गोइंग फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, the middle point is x. You can assume I'm going from A to X, constant volume, X to B, constant pressure. That is one route that you can take. The second route you can take is you can assume I am going from constant pressure and then going to constant volume. बात समझ आई? आप अपनी आसानी के लिए खुद assume करोगे. And before I carry on forward, I need to tell you something which I forgot to tell you yesterday. Yesterday in the numerical, when we compared our answers for W, look at the answers for W. What are the answers for W? 1.879, 9.434. Are they both positive? दोनों आंसर पॉजिटिव हैं? यस सर. क्वेश्चन में देखें,
ये मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूं ताकि आप बाद में गलती नहीं करें। ये क्वेश्चन के अंदर था air at 1 bar and 25 degree is compressed to 5 bar and 25 degrees. The word compressed tells you that the work has to be positive in both the processes. इसीलिए प्रोसेस 1 का W भी पॉजिटिव आ रहा है, प्रोसेस 2 का W भी पॉजिटिव आ रहा है। तो आप अपने W को देखकर क्रॉस चेक कर सकते हो कि मेरा W दोनों पॉजिटिव आया है। अगर आपका एक भी W नेगेटिव है तो क्वेश्चन देखकर ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कुछ घपला किया है, W के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कंप्रेस लिखा हुआ है। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप ये नहीं बता सकते हो, मगर फिर मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन देता, एयर एट 1 बार एंड 25 डिग्री इज चेंज टू 5 बार एंड 25 डिग्री, और आखिरी पार्ट मेरा ये होता, बेस्ड ऑन योर आंसर्स कैलकुलेटेड स्टेट वेदर द प्रोसेस इज कंप्रेशन और एक्सपेंशन। ये चीज आप दो तरीके से बता सकते थे, एक आप वर्क से बता सकते थे और दूसरा जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते उससे बता सकते थे कि वॉल्यूम चेंज हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, बड़ी वॉल्यूम से छोटी वॉल्यूम हो रही है। तो ये छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, बैक टू आवर न्यूमेरिकल नाउ। Looking at the question, you know that you have to divide it into 2 steps. Okay, no problem. So first of all, what I do is I make my assumptions. My very first assumption is 1 kilomole basis to simplify the equation. Then what I do, I divide the process into two steps. Assume constant volume followed by constant pressure. मैंने अपनी आसानी के लिए कहा कि मुझे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम करना है, बाद में कांस्टेंट प्रेशर करना है। मैं आपको ये अगर कोई स्टूडेंट चाहता कि मैं कांस्टेंट प्रेशर भी करूंगा फॉलोड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम करूंगा, वो भी अलाउ है, कोई मसला नहीं है। आप वो प्रोसेस पहले ले सकते हो, बाद में वो प्रोसेस ले सकते हो, कोई मुझे मसला नहीं है। तो मगर मैंने जो सॉल्व किया है, मैं इससे सॉल्व कर रहा हूं कि मैं अज्यूम कर रहा हूं माय प्रोसेस इज कांस्टेंट वॉल्यूम to a final pressure, and then I am doing a constant pressure to a final temperature. That is my two-way process. What I do, first of all, I divide my diagram. I am going from condition 1 to condition 2. देखें, condition 1 के ऊपर, then second thing is you write all the information you have. Condition 1, temperature is 277 Kelvin, pressure 1 is 10 bars, V1 was given to me 2.28 meter cube per kilomole था, my basis made it meter cube. Condition 2, 333 Kelvin was given, 1 atm was given, V2 wasn't given, I don't know V2 as yet. बाकी is Tx, let's take the middle point x. Tx, I don't know the temperature. Px, how can I write Px as 1 atm? I assumed my process was constant volume followed by constant pressure. अगर मैं constant volume की बात करता हूं, I am saying that 1 to x is constant volume. What does that mean? That means that the volume at x would be the same as the volume at point 1, क्योंकि 1 to x constant volume है। तो अगर 1 के ऊपर 2.28 मीटर क्यूब है तो x के ऊपर वॉल्यूम कितना होगा, 2.28 मीटर क्यूब। इसी तरह मैंने ये भी अज्यूम किया कि x to 2 मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर है। तो अगर मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर है और 2 के ऊपर मेरा प्रेशर 1 atm है, तो 1 के ऊपर मेरा प्रेशर क्या होगा, हेलो वेक अप। यस सर। 1 के ऊपर x पे मेरा प्रेशर क्या होगा, 1 atm होगा। अब देखें यहाँ पर मैं दूसरी बात ऐड करना चाहता हूँ। बिल फर्ज कोई स्टूडेंट बोलता कि नहीं मुझे कांस्टेंट प्रेशर पे जाना है फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जाना है, तो उसकी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती। उसका कंडीशन क्या होता कि अगर वो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है पहले, तो उसका जो px होता वो होता 10 बार, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर पहले ले रहा है, और फॉलोड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसका vx क्या होता, उसका vx होता आपका फाइनल वॉल्यूम, जो कि आपको ढूंढना पड़ता।
तो यहाँ पर आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा होता। दोनों मेथड करेक्ट है। आई डोंट केयर आप कौन से मेथड से करो, दोनों मेथड करेक्ट है। इस डायग्राम पे मैं सिर्फ 2-3 चीजें ऐड करना भूल गया। फर्स्टली आई शुड हैव रिटन 1 to x is constant volume. Secondly, I should have written x to 2 is constant pressure. Thirdly, 1 to x के बीच में I should have written delta u, delta h, q and w. And x to 2 तक भी मुझे लिखना चाहिए था डेल्टा h, डेल्टा u, q plus w, क्योंकि ये चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है। अब अकॉर्डिंग टू ऑल द डेटा दैट आई हैव, only 2 values are missing. One value is tx, one value is v2. सब पहली बात, this is not under isothermal condition. अगर ये isothermal condition में होता, मुझे मेरा v2 ऑटोमेटिकली मिल जाता, मैं बॉयल्स लॉ लगा देता। मगर यहाँ पर मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मैं बॉयल्स लॉ लगा नहीं सकता। बॉयल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन आइसोथर्मल कंडीशन। तो मेरे पास एक चीज मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी v2, दूसरी चीज करनी पड़ेगी मुझे फाइंड आउट tx। tx मुझे क्यों फाइंड आउट करना है? tx मुझे इसलिए फाइंड आउट करना है क्योंकि tx के बगैर मुझे मेरी स्पेसिफिक हीट्स नहीं मालूम पड़ेंगी। बिकॉज स्पेसिफिक हीट्स आर cp delta t, cv delta t. For a two process there is an intermediate temperature. तो अब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट प्रोसेस की। फर्स्ट प्रोसेस इज गोइंग फ्रॉम 1 to point x, यानी 1 to मिडिल पॉइंट। मेरी पहली प्रोसेस क्या थी? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम थी। अब आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर। कांस्टेंट वॉल्यूम इज चार्ल्स लॉ। कांस्टेंट वॉल्यूम इज नॉट चार्ल्स लॉ, कांस्टेंट वॉल्यूम इज जोसेफ्स लॉ, बट आई वाज टू लेजी टू चेंज इट। मेरा मूड नहीं हो रहा था मैं पूरी स्लाइड निकालूं और चेंज करूं, इसलिए मैंने यहां पर ब्लैक में करेक्ट कर लिख लिया है कांस्टेंट वॉल्यूम इज जोसेफ लॉ एंड नॉट चार्ल्स लॉ। I will repeat it one more time. Charles' law is that pressure is constant, volume is directly proportional to temperature. Joseph's law is volume is constant, pressure is directly related to temperature. 1 to x के अंदर हम constant volume assume कर रहे हैं। constant volume क्या होता है? जोसेफ्स लॉ। तो P1 upon T1 is equal to P2 upon, I should not have written T2, I should have written Tx. P1 upon T1 is equal to Px upon Tx. This is जोसेफ्स लॉ। मुझे मेरी P1 मालूम है, मेरा P1 10 है, मुझे मेरा T1 मालूम है 277, मुझे मेरा P2 मालूम, Px मालूम है 180 m। Now Px is equal to 180 m। देखें अगर ये बार में होता मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बार और बार रेशियो होता, यहां से कैंसिल हो जाता। बट दिस इज 10 बार, दिस इज 180 m। आई कैन डू आइदर ऑफ द 3 मेथड्स। बेस्ट तो ये है कि मैं SI यूनिट्स में ले जाऊं, तो मैं इसको 10 to the power 5 पास्कल, 10 to the power 6 पास्कल लिख देता, इसको मैं लिख देता 101325 पास्कल। दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। एक तरीका आप ये कर सकते थे। दूसरा तरीका ये था कि आप सबको बार में कन्वर्ट कर सकते थे, यहां पर बार है इसको भी बार कर लेते। तीसरा तरीका ये था, ये ATM है तो आप इसको भी ATM कर लेते। मैंने इसको बार में फिलहाल कन्वर्ट कर दिया 180 m को। रेशियो है तो फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैंने इस रेशियो को सॉल्व किया, एक सेकेंड, जब मैंने इस रेशियो को सॉल्व किया तो मुझे एक टेम्परेचर मिला जो मेरा इंटरमीडिएट टेम्परेचर है 28.06 केल्विन। पूछें सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर फॉर एग्जांपल हम दो वेरिएबल्स की बात करें, मतलब प्रेशर की और टेम्परेचर की, और रेशियो का इक्वेशन ना हो, कोई और इक्वेशन हो, और टेम्परेचर फॉर एग्जांपल गिवन हो अमेरिकन सिस्टम में और प्रेशर SI यूनिट्स में, तो फिर हम जो है ना इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं दो डिफरेंट सिस्टम्स को, रेशियो भी ना हो। देखें अगर फर्ज करें आप ये बोल रहे हैं कि आपका वो अमेरिकन यूनिट्स के अंदर है और एक
आपके नॉर्मल यूनिट्स के अंदर है। अगर रेशियो होगा तो निकल जाएगा, रेशियो अगर नहीं है तो नहीं निकलेगा। मगर रेशियो निकालने के बाद भी आपको आखिर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं ना कि फर्ज करें आपका जो प्रेशर है वो पास्कल के अंदर है, चलो पास्कल पास्कल दोनों तरफ कट जाएगा, आपका जो टी है वो एक रैंकिन के अंदर है। अगर वो रैंकिन के अंदर है तो आपका जो दूसरा टी होगा वो भी रैंकिन में आएगा। दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं, एक एसआई में है एक रैंकिन में है। मगर फिर जब आप इसको फाइनल कैलकुलेशन में करेंगे ना जूल निकालने के लिए, क्योंकि जूल एसआई यूनिट है, तो आपको जो फाइनल रैंकिन का आंसर होएगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही बोलना चाह रहे हैं ना कि एक अगर प्रेशर है, एक अगर एसआई में है और एक अमेरिकन यूनिट्स में है, तो इस फॉर्मूले में लग जाएगा, क्योंकि अगर उसके यूनिट सर सेम है। अगर रेशियो वाला फॉर्मूला ना हो, कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें रेशियो ना हो, तो तब तो नहीं लगेगा ना? फिर नहीं लगेगा, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मगर ओके मगर सर। गैस लॉज जितने भी होते हैं वो रेशियो होते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जोसेफ्स लॉ, दे ऑल आर रेशियोज। तो इसमें चल ओके जाएगा, सर। बट अगर डेफिनेटली अगर रेशियो ना हो नहीं चलेगा। किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना था? एक और आवाज मैंने सुनी थी, यस सर। बोलें। सर आप तो कांस्टेंट वॉल्यूम से लेके जा रहे हैं ना, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पहले रखें तो उसमें टीएक्स और वीएक्स दोनों अननोन होंगे, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? फिर कैसे सॉल्व करेंगे? फिर आपको जी पहले सर, दो। वी नहीं, तो आपके पास टी एक्स अननोन है, वी एक्स अननोन है, फिर जी आपको थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। आपको ये तो मालूम है ना कि P2 यहाँ पर है, T2 यहाँ पर है, और ये दोनों जी कांस्टेंट हैं। तो पहले आपको चार्ल्स लॉ लगाना पड़ेगा। चार्ल्स लॉ लगाकर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये मैंने कल सॉल्व किया था रिवर्स कर भी। पहले आपको चार्ल्स लॉ लगाना पड़ेगा, फिर आपको बैक कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने ये कहा कांस्टेंट प्रेशर फॉलोड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम, यही कहा ना? यस सर। फर्ज करें आपने Tx को x ले लिया, आपने Px को यस 180 m Px को आपने 10 बार ले लिया, ये बार हो जाएगा क्योंकि यस सर। पहले कांस्टेंट प्रेशर है। ये 80 m है, ये T आपको मालूम है, तो इनमें से आपको क्या एक वैल्यू नहीं मालूम है, आपको सिर्फ ये वैल्यू नहीं मालूम है। ये वॉल्यूम तो आपको वैसे ही मालूम है, कांस्टेंट है ना। तो पहले आप चार्ल्स लॉ जी लगाओगे, चार्ल्स लॉ जब आप लगाओगे तो आपको ये टी मिल जाएगा, आपको फिर वी भी मिल जाएगा। जी सर। सिर्फ सही है ना? समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको पहले यस सर। उसके अंदर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग में आना पड़ेगा, यानी पीछे से आगे की तरफ आना पड़ेगा। बात मगर वही होगी, वॉल्यूम उतनी आएगी, 27.05 आएगी। मैंने कल इसको सॉल्व किया है। अच्छा, अब ओके सर। रिगार्डिंग दिस स्लाइड, यहां पर अभी तक किसी को कोई मसला है कि मैंने ये जोसेफ्स लॉ पहले क्यों लगाया? नो सर। नो सही है, नो सर। चलें। मुझे एक इंटरमीडिएट टी मिल गया। मेरी पहली प्रोसेस क्या थी? मेरी पहली प्रोसेस थी कांस्टेंट वॉल्यूम, इग्नोर कांस्टेंट प्रेशर राइट नाउ। जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूं तो पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में क्या आता है? इंटेल्पी इंटेल्पी आता है सर। क्या कांस्टेंट वॉल्यूम में? इंटेल्पी। इंटरनल नो, एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। एनर्जी। Let me repeat again. Constant volume, always internal energy. Constant pressure, always enthalpy. And these two are always equal to Q. यानी आपको इस तरह Q भी मिल जाएगा। तो हमने पहले बात की कांस्टेंट वॉल्यूम की। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लगाएंगे डेल्टा U is equal to CV डेल्टा T which is also equal to Q। तो मैंने यही लगाया, मैंने यहां पर लगाया, आ गया। ये देखें, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। डेल्टा U इज इक्वल टू CV डेल्टा T इज इक्वल टू Q। CV की जगह मैंने क्या लगाया? 21 इंटू 10 टू द पावर 3। डू नॉट फॉरगेट दिस 10 टू द पावर 3। ये क्यों लगाया? आंखें खोलकर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में CV एंड किलो। P
किलो जूल पर किलो मोल हैं। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 नहीं लगाएं तो आपका आंसर गलत आएगा, जूल में गलत आएगा, जूल में आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 21 इंटू 10 टू द पावर 3 लगाया है टू चेंज इट इनटू जूल्स। तो ये मेरी CV की वैल्यू है। डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। My final temperature was what? My final temperature was temperature of Tx, which was 28.06. My initial temperature was temperature at state 1, 277. मुझे मेरा delta U मिल गया. I should write this as delta U1 because this is for process 1. मैं 1 लिखना भूल गया और ये मुझे लिखना चाहिए Q1 क्योंकि ये process 1 की Q है। तो इस तरह मुझे मेरा डेल्टा यू मिल गया। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू माइनस 5227.74 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ 10 टू द पावर 3 इसलिए लिखा है, मुझे एक आंसर अच्छा लगता है कि SI फॉर्म में हो। अगर मैं इसको वैसे ही लिख देता तो एक बहुत बड़ा आंसर हो जाता, वो भी चल जाता। A student could have written this as 5227740, doesn't matter। तो अब आपको समझ आया कि मुझे ये डेल्टा U1 कैसे मिला और Q1 कैसे मिला। सर आंसर में सिग्निफिकेंट मैटर नहीं करते सर। क्या हुआ? सिग्निफिकेंट मेथड? सिग्निफिकेंट फिगर्स मैटर नहीं करता। लिख सकते हैं, मैंने सिग्निफिकेंट मेथड में लिखा है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स मैटर नहीं करते सर। किसमें? दोबारा बोले, क्लियर नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं सर, हाँ मतलब जिससे हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 3 to 4 सिग्निफिकेंस लिखना है, तो इसमें नहीं होता है सर। इसमें होता है। आइडियली आपको लिखना चाहिए, मगर कुछ चीजों में मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस में लिखें। अब यहाँ पर मैंने 2 में लिख दिया, अब यहाँ पर देखें मैं 3 में ले गया 719। मिनिमम 2 होने चाहिए और बेस्ट तो ये होता है अगर आप 3 में लिखें, मगर कुछ जगहों पर मैं आपको बोलूंगा कि लाजमी 4 लिखें, उधर लाजमी 4 लिखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर होगा ना, जिधर मैं रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर की बात करूंगा, वहां पर मैं आपको यकीनन बोलूंगा। तो जिधर मैं बोलूं वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, तो यहां पर इतना मैटर नहीं करता है। तो सही है, मुझे मेरा डेल्टा U1 मिल गया, मुझे मेरा Q1 मिल गया। अब जब भी आपको डेल्टा U या डेल्टा H पहले मिल जाए तो दूसरी चीज है इंथैल्पी ढूंढना या चेंज इन इंथैल्पी ढूंढना। मैं बात करता हूं चेंज इन इंथैल्पी की। चेंज इन इंथैल्पी क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PB। डेल्टा U1 मैंने अभी अभी ढूंढा है ऊपर, उसकी वैल्यू मैंने वैसे के वैसे लिख ली। अब देखें इसके अंदर मेरा क्या चेंज हो रहा है। इसके अंदर मेरा प्रेशर चेंज हो रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। कल मैंने आपको बताया था कि एंथैल्पी के 2 फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज हो रही होती है। दूसरा फॉर्म होता है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रेशर चेंज हो रहा है। इसके अंदर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है बिकॉज इट इज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो आपने 2.28 वैसे के वैसे लिखा जी। सर इसमें डेल्टा पी नहीं आएगा, डेल्टा एच डेल्टा पी नहीं आएगा सर इसमें। चेंज इन क्यों आएगा? क्यों? चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर है सर, कांस्टेंट वॉल्यूम है सर। कांस्टेंट वॉल्यूम है। मेरा पहला स्टेप कांस्टेंट वॉल्यूम था। कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर प्रेशर चेंज होगा ना, वॉल्यूम बाहर कांस्टेंट लिखा हुआ है 2.28। प्रेशर ही चेंज हो रहा है ना। इक्वेशन की बात कर रहा हूं सर, इक्वेशन की बात। इक्वेशन में क्या बोल रहे हैं सर? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी होगा, ये सही होगा सर? मुझे यही लिखना चाहिए था, मैंने सिर्फ मेन एंथैल्पी लिख दिया। आइडियली अगर आप बिल्कुल इसको क्लियर कट लिखना चाहते थे ना, तो आप इसको लिखते डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। यही बोल रहे हैं ना, लिखना ये चाहिए था। अब जैसे मैंने यहाँ पर पी भी लिख दिया ना, अब इसमें ये लग रहा है कि पी भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो आई शुड हैव रिटन दिस एज पी डेल्टा वी। आइडियली मुझे ये लिखना चाहिए था, मगर दूसरे स्टेप में मैंने इसको शो कर दिया। बात आपकी सही है। अब जहां पर अब यहाँ पर देखें,
मैंने यहाँ पर 2.28 को कांस्टेंट लिया, मेरा क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है। P2 क्या है? 180 m, P1 क्या है? 10 बार। यहां पर मुझे कन्वर्ट करना लाजमी होगा क्योंकि मुझे आंसर जूल में चाहिए। अब या तो आप शुरू के अंदर ही कन्वर्ट कर कर इसको SI यूनिट में लिख देते तो आपको बाद में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, मगर क्योंकि मैंने शुरू में कन्वर्ट नहीं किया, लाजमी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 180 m इज इक्वल टू 101325 पास्कल। 10 बार क्या होता है? 10 टू द पावर 6 पास्कल। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। इससे मुझे डेल्टा H की एक वैल्यू मिल गई जो कि -726.719 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स है। ये कौन सी डेल्टा H वैल्यू है? ये डेल्टा, अब मैंने यहां पर नहीं लिखा है, आप लोग अपनी आसानी के लिए इसको लिखिएगा। ये डेल्टा H 1 की वैल्यू है, यानी प्रोसेस 1। तो अब तक आपको कितनी वैल्यू मिल गई हैं? अब तक आपको 3 वैल्यूज मिल गई हैं। आपको मिल गया है Q1, आपको मिल गया है डेल्टा U1, आपको मिल गया है डेल्टा H1। अगर आप चाहें तो आप W भी यहां पर ढूंढ सकते हैं, मगर उसके अंदर आपको 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम इसको स्मार्टली ये करते हैं कि हम W आखिर में ढूंढते हैं। अगर हम टोटल U पहले ढूंढ लें, टोटल Q पहले ढूंढ लें, तो डायरेक्टली 1 स्टेप के अंदर हम फर्स्ट लॉ लगाकर W ढूंढ सकते हैं। तो आप वो मेथड भी कर सकते हैं और आप ये मेथड भी कर सकते हैं कि आप सेपरेटली W यहां निकाल सकते हैं। ये कर सकते हैं Q प्लस W इज डेल्टा। जी सर, अगर हम जी इस स्टेप में W निकालेंगे तो W होगा ना डेल्टा PV होगा ना, उससे निकालेंगे ना? उससे भी निकालेंगे, मगर उसके अंदर पे थोड़ा सा आप देखें, डेल्टा PV आप जब निकालेंगे अगर आप एंथैल्पी की वैल्यू यूज कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दूं तो सर 0 आएगा ना, वो 0 आएगा। तो आपको एंथैल्पी भी निकालना पड़ेगा, तो आपको यूं ही निकलेगा क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। मगर इसलिए मैं आपको, आपकी मर्जी है, आपने सही बोला एंथैल्पी निकाल कर करेंगे, मगर बेहतर ये है कि इजियर मेथड ये है कि आप टोटल फाइनल के अंदर निकाल दें। फाइनल के अंदर इट इज द इजीएस्ट वे। मैंने पिछला क्वेश्चन भी फाइनल में निकाला था, मुझे ज्यादा आसानी लगती है फाइनल से निकालने के लिए। तो अब मुझे 3 वैल्यू मिल गई। आई रिपीट, डेल्टा U1, Q1, डेल्टा H1। ये मेरी प्रोसेस 1 की 3 वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं प्रोसेस 2 के ऊपर जा रहा हूं। प्रोसेस 2 में मुझे क्या चीज नहीं मालूम है? V2 सर। V2 नहीं मालूम है। आपको क्या लगता है कि अगर प्रोसेस 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो मैं क्या लगाऊंगा V2 ढूंढने के लिए? चार्ल्स लॉ। तो मैंने सबसे पहले तो मेरी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है, मैंने चार्ल्स लॉ लगा दिया। जब मैंने चार्ल्स लॉ लगा दिया तो मुझे एक V2 की वैल्यू मिल गई। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर V2 की वैल्यू लिखना भूल गया, पर V2 की वैल्यू बाय दिस कैलकुलेशन इज कमिंग टू 27.06 मीटर क्यूब। 27.06 मीटर क्यूब की वैल्यू आ रही है। सही है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे? यस सर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कांस्टेंट प्रेशर? सर एंथैल्पी। एंथैल्पी। तो सबसे पहले मैं एंथैल्पी ढूंढूंगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में सबसे पहले मैंने इंटरनल एनर्जी ढूंढा था। अब जब मैं एंथैल्पी ढूंढ रहा हूं, डेल्टा H इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T। अगेन मैं Q को लिखूंगा 29.3 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल्स के अंदर था। फाइनल टेम्परेचर मेरा 333 था कंडीशन 2 के ऊपर। इनिशियल टेम्परेचर मेरा X का टेम्परेचर होगा, मिडिल पॉइंट का। ये मेरी एक एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है। सर what should I have written over here? I should have written over here to make matters simpler, delta H2 Q2। ये Q2 लिखता क्योंकि ये प्रोसेस 2 की Q है। अब अगर मैंने यहां भी Q लिख दिया है, वहां भी Q लिख दिया है, अब ये ऐसा लग रहा है कि पूरी प्रोसेस के अंदर वो भी Q इक्वल टू दिस Q है।
विच इज नॉट ट्रू। बात समझ रहे हैं? सर उस एक वक्त क्वेश्चन है सर। जी सर आपको V2 चाहिए, सही है? अगर हम हम्म, क्वेश्चन पढ़ें सर तो उन्होंने लिखा है कि PV अपॉन T जो है ना ये कांस्टेंट है एयर के लिए, तो हम दो पॉइंट्स को ले लें और जो है ना PV अपॉन T का रेशियो जो है ना वो तो वैसे ही कांस्टेंट है प्रोसेस के लिए, तो हम एक पॉइंट पे ले लें PV अपॉन T और दूसरे पॉइंट पे ले लें, तो उससे भी तो निकल जाएगा ना सर? निकल जाएगा, डजेंट मैटर, पर हर बंदा इसको पिक नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने एक स्टैंडर्ड आंसर लिखा। अगर आप चाहते हैं उस तरह निकाल कर आप कर सकते हैं। ओके सर। सही है, मैंने आपको थर्मोडायनेमिकली बताया, आप ओके ओके मैथमेटिकली सर। करना चाह रहे हो, दैट इज पॉसिबल, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके चले, सर। तो अब आपको क्या मिल गया? आपको डेल्टा H2 मिल गया, आपको Q2 मिल गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब जब आपको डेल्टा H मिल गया तो डेल्टा U किस तरह ढूंढ मिलेगा? अगेन द एंथैल्पी फॉर्मूला। बात वही है, अगर आप डेल्टा U पहले ढूंढते हो तब भी आपको एंथैल्पी फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और अगर आप डेल्टा H पहले यूज करते हो तब भी एंथैल्पी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे? आप मेन एंथैल्पी फॉर्मूला लगाओगे। मेन एंथैल्पी फॉर्मूला इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV। Again, someone can say that this is written wrong. This should have been written as delta H is equal to delta U plus P delta V, क्योंकि यहां पर मैं वॉल्यूम चेंज कर रहा था। डेल्टा H मुझे अभी मालूम है, मैंने डेल्टा H निकाला है। डेल्टा U मुझे फाइंड आउट करना है, यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। प्रेशर मेरा क्या है? कांस्टेंट है। कितना कांस्टेंट था? 1 atm। इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट इट इनटू पास्कल। मैंने कन्वर्ट कर दिया, 101325 पास्कल। ये 27.06 कहां से आया? फ्रॉम दिस वैल्यू, चार्ल्स लॉ, सॉरी कौन सा लॉ है? चार्ल्स लगाया था ना, हाँ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ से यहां से 27.06 आया। ये मेरी इनिशियल वैल्यू थी जो x के ऊपर थी, 2.28। ये देखें, इससे मुझे क्या मिल गया? मुझे डेल्टा U मिल गया। ये कौन सा डेल्टा U है? ये हो गया डेल्टा U2। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे टोटल डेल्टा U चाहिए। टोटल डेल्टा U इज नथिंग बट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये डेल्टा 2 ये रहा, डेल्टा 1 डेल्टा U1 ये रहा। दोनों को मैंने ऐड कर लिया। जब मैंने दोनों को ऐड कर लिया, जब मैंने दोनों को ऐड कर लिया तो मुझे मेरा मिल गया टोटल डेल्टा U। इसको देखे, मैंने टोटल डेल्टा U लिखा हुआ है, पता नहीं। इसी तरह मैंने टोटल डेल्टा H निकाल लिया। मैं रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। इसी तरह मैंने टोटल डेल्टा H बना दिया। टोटल डेल्टा H के अंदर भी मैंने H1 को ऐड कर दिया, H2 को ऐड कर दिया। यहां तक कोई मसला? नो सर। बाकी मेरे पास दो वैल्यूज कौन सी थी? मेरे पास वैल्यू थी Q2 की जो यहां से निकली थी, मेरे पास वैल्यू थी Q1 की जो यहां से निकली थी। टोटल Q भी मिल जाएगा। टोटल Q कैसे मिलेगा? दोनों को ऐड कर दूं। सो माय टोटल Q इज दिस। ये मुझे मेरा टोटल Q मिल गया, दोनों वैल्यू ऐड कर दी। आखिर में क्या बचा? मुझे इंडिविजुअल W तो नहीं मालूम करना था ना, मुझे टोटल W मालूम करना था। सिंपली फर्स्ट लॉ लगा दूं। फर्स्ट लॉ कैसे लगाया? टोटल डेल्टा U जो दोनों का टोटल है डेल्टा U, उसके बाद इज इक्वल टू Q, टोटल Q लगा दिया, टोटल Q लगा दिया, और फाइनली W वैसे के वैसे रहने दिया। मुझे टोटल W की वैल्यू मिल गई। अब यहां पर देखें, अब अगर कोई स्टूडेंट होगा ना जो स्मार्ट होगा, वो अपना आंसर चेक करेगा। वो क्या चेक करेगा? वो देखेगा कि मेरी वैल्यू W की क्या आ रही है, नेगेटिव है। अब आंसर मैं ये पूछ सकता हूं, इज इट कंप्रेशन और एक्सपेंशन? आपने कहा इट इज एक्सपेंशन बिकॉज इट इज नेगेटिव। मगर एक स्टूडेंट जो रीचेक करना चाहता है अपने आंसर को, सबसे आसान तरीका क्या है रीचेक करने का? उसने कहा चलो मेरा W यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, वो क्वेश्चन में जाएगा, वो क्वेश्चन में देखेगा कि इनिशियल कंडीशन 2.28 थी, फाइनल 27 जा रही है, ऑफ कोर्स एक्सपेंशन हो रही है, तो मेरी W सही है, मेरी W शुड हैव कम नेगेटिव।
क्योंकि यहाँ पर एक्सपैंड होगी तो उसका W नेगेटिव है। आखिर में आप टेबल बनाकर टोटल आंसर्स लिख लें। क्या मुश्किल थी इस सवाल में? सर सबसे ज्यादा मुश्किल ये थी सर कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में मेंशन नहीं था सर। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप दोनों में से कोई भी पाथ यूज कर सकते हैं। सर तो इससे हम आगे गए ही नहीं फिर। अगर आप ये बोल रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर मिस थी, तो आप ये नहीं बोल सकते। दोनों सीआर यहाँ पर बैठे हुए इस वक्त, दोनों को मैंने मैसेज किया था हिंट्स देकर कि आई वुड रेकमेंड डूइंग कांस्टेंट वॉल्यूम फॉलोड बाय कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो दोनों सीआर में से अभी एक बोल दे कि आई एम सेइंग रॉन्ग। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी सेव्ड है, मैंने कहा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पहले करें, कांस्टेंट प्रेशर बाद में करें। तो ये कोई नहीं बोले कि हमें मालूम नहीं था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पहले लेनी है, कांस्टेंट प्रेशर पहले लेना है। ये मैंने आपको हिंट दी थी। चलें, सो दैट सर जी सर कांस्टेंट वॉल्यूम से पहले क्यों करना था, इसकी क्या रीजन है? मैंने देखें, दोनों में से कांस्टेंट वॉल्यूम से आंसर ज्यादा आसानी से निकल रहा है। आप बैक ट्रैक नहीं कर रहे। कांस्टेंट वॉल्यूम जरूरी नहीं था आप पहले करना था। मैंने आपको क्या कहा, आप कांस्टेंट प्रेशर भी पहले ले सकते थे। अगर आप चाहते आप कांस्टेंट प्रेशर पहले लेते, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम लेते। दैट इज वन पाथ यू कुड हैव टेकन। या तो अगर आप चाहते आप कांस्टेंट वॉल्यूम पहले लेते और कांस्टेंट प्रेशर बाद में लेते, मगर जो आंसर आता ना वो डेफिनेटली कांस्टेंट प्रेशर वाले का अलग आता फॉलोड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले का अलग आता कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। क्योंकि आपका पार्ट डिफरेंट होता तो किसी का Q अलग आता, किसी का W अलग आता। तो अगर आप एक दूसरे से कंपेयर करते ना कि ये Q और W क्या है, तो दोनों के आंसर में फर्क आता, बिकॉज दीज आर पाथ फंक्शंस व्हिच आई हैड एक्सप्लेन्ड। आइडियली व्हाट आई शुड हैव डन वाज, मुझे करना ये चाहिए था कि मैं ये बोलता कि सेक्शन ए वाले सारे कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर से करें, सेक्शन बी वाले सारे कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम से करें। मगर चले, अब अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूं तो ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा करें। अगर मैं आपको एग्जाम के अंदर बाउंड कर दूं, अज्यूम कांस्टेंट प्रेशर फॉलोड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपको वही करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह का सवाल लिखता हूं जो ओपन लिखता हूं, कुछ नहीं लिखता हूं, आपकी मर्जी, आप कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम आओ, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर आओ। सही है? हेलो, ओके सर। चलें, तो यस ये आपका ClO1 का पार्शियल हिस्सा खत्म हो गया है। आई हैव कंप्लीटेड ClO1 पार्शियली। रीजन आई एम सेइंग पार्शियली because the second law of thermodynamics is also part of ClO1, which I will cover later. For now I have just done partial ClO1. So lastly, the points to remember in this: at the end of this section, a student is able to, these are the points I covered and I expect you to know. Understand the first law of thermodynamics. Understand the sign convention pertaining to the first law and its component, system and surrounding, whether it is on the system or by the system. हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बेस के ऊपर डिजाइन किया जाता है बाय कन्वेंशन, बट यू शुड नो दैट कि इफ समथिंग इज गोइंग from the system, it goes on the surrounding. If something is coming from the surrounding, it will go on the system. You should know that. You should be able to derive the first law. I derived the first law to you keeping the surrounding as a base. Then you should be able to understand the difference between state and path functions. I explained you the difference. I gave you a numerical on it also. You should have a concept of a constant volume, constant pressure process. Relate specific constant heat and constant volume and pressure to change in internal energy and change in enthalpy, which means you should be able to do Cp delta T is equal to delta H is equal to Q, or Cv delta T is equal to delta U is equal to Q. You should know these relations. You should be able to derive the enthalpy. मैंने derivation कराई थी. Similarly, you should be able to derive the Meier's equation relating to an ideal gas and specific heat. Lastly, solve problems relating to the above concepts based on a closed system. हमने अपना पूरा मॉडल किया है क्लोज सिस्टम के ऊपर. अब क्लोज सिस्टम के ऊपर दो तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं.
एक आ सकता है आइसोथर्मल कंडीशन पे, एक आ सकता है नॉन आइसोथर्मल कंडीशन के ऊपर। मैंने आपको दोनों करा दिए। So that is the end of ClO1. Any questions from your side? सर एक क्वेश्चन है सर, आप मुझे कल कह रहे थे कि वो डेल्टा एच और डेल्टा यू की दोनों की जो वैल्यूज होगी दोनों प्रोसेस की वो थोड़ी सी सेम होगी, मतलब थोड़ा सा फर्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अभी जो आपने प्रोसेस 2 करवाया, मैंने प्रोसेस 1 करा था, तो उसमें भी